Good morning, students. This session is for class 8th, and we are studying the chapter 6 of your NCERT book, that is Combustion and Flame. Students, in last sessions we have completed types of combustion and how to control fire. In that session we have also completed fire extinguisher and why carbon dioxide fire extinguisher is considered as the excellent fire extinguisher. Okay, students, in this session we are going to start the topic, that is flame. We have already completed this topic by using PPT in previous sessions. Students, let me remind you one thing, that we have already completed this chapter by using PPT. Some of the students said they have some difficulties to understand the text given in NCERT book. So we are now studying the same chapter with the help of text given in NCERT book, and I am damn sure you are continuously clearing your doubts and your other problems in these sessions, and these sessions are continuously giving you the great uh, giving you more time, more deep knowledge. So let's start with the topic, that is known as flame. So let me read first the text given in this paragraph, and then I will explain these things. Okay. So you can see the observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of candle flame? So students, I am sure that you all have LPG gas cylinders and the stove at your home. You can use the flame with the help of your parents, because some of you are not able to handle that easily. So try to take help of your parents and see the color of the flame and give your answer in comments box. Okay, because you can easily observe these things, so I am not going to give you answer of this question. This one is homework for you. Okay, now let's see. Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7th. So we are going to recall you this activity here. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. So let's see the table, that is 6.2. So I am sure that you have experience about this burning of the candle and its flame, or you can easily perform this activity. Okay, but make sure that your hand does not get damaged by the melted hot wax of this candle. Okay, then second one is magnesium. I hope you have done this activity in class 7, the activity related to the magnesium ribbon. If not, you should perform this activity in this class, but in this session we can only explain about this. कैम्फर, आप जानते हैं कैम्फर, कपूर जो जलाते हैं उसी को कैम्फर बोलते हैं. देन केरोसिन स्टोव, केरोसिन ऑयल से जिस स्टोव को जलाते हैं उसको केरोसिन स्टोव बोलते हैं. देन चारकोल. तो आई होप कि आपको कैंडल का एक्सपीरियंस ज़रूर है, कैम्फर का भी होगा.
और मैग्नीशियम रिबन का भी आपने एक्टिविटी किया होगा। केरोसिन स्टोव और चारकोल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इन सब के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन कौन से इसमें फ्लेम बनाते हैं। तो क्या कैंडल फ्लेम देता है, क्या मैग्नीशियम फ्लेम देता है, क्या कैम्फर फ्लेम देता है, केरोसिन ऑयल स्टोव फ्लेम देता है या नहीं। यहाँ पे आपको इस टेबल को फिल करना होगा, ठीक है। इस टेबल को आपको फिल करना है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। अभी आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा, तब तक आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फिगर 6.8 द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव इज गिवन। दिस वन इज एक्चुअली LPG and this one is the candle flame. Okay, now you can see the flame of the kerosene lamp. This one is not kerosene stove, but it is kerosene lamp, candle. And this one is the Bunsen burner. These burners are used in labs during the experiments. Okay, you can use in other purposes also. So now we are going to study about the structure of flame. Activity 6.5, light a candle. Caution, be careful. Why be careful? Be careful about the melted wax, which can be very dangerous for your hand. So make yourself sure that it will be not fall on your fingers or other part of your body. So light a candle, hold a 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs. You can see this one is the tube, this one is glass tube with a pair of tongs, and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. Figure 6.10. So you can see here, this one is the glass tube. So hold 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. And do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. तो इसका मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ देखिए ये ग्लास ट्यूब है, ओके, और इसको इस फ्लेम के पास यहाँ पे रखा जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल, यहाँ पे रखना है आपको डार्क जोन में। रखने के बाद एक लाइटेड मैचस्टिक यहाँ पे ले आना है। आप देखेंगे इस पोर्शन में एक फ्लेम जलने लग जाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melt quickly. Now you can say from this activity that the substances which vaporize during burning gives flame. So this one is the most important result of this activity, okay. And this says that the substances which
vaporize during burning gives flame. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोल्टेन वैक्स है और जो केरोसिन ऑयल है ये वेपराइज होते हैं और वेपराइज होने वाले मटेरियल्स फ्लेम फॉर्म करते हैं. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइजेज. चारकोल वेपराइज नहीं होता है एंड सो डज नॉट प्रोड्यूसेज अ फ्लेम, और ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है. इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced. तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप समझ गए होंगे. इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced. I hope you get the answer. So yes, of course it is. So you can see here, when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. 6.11 figure you can see. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडल है, ठीक है. कैंडल के जो लुमिनस जोन है उसमें एक ग्लास सीट रखना है और 10 सेकेंड के बाद ऑब्जर्वेशन चेक करना है क्या होता है. यहाँ पे हाथ से नहीं इसको यूज़ करते हैं या फिर एक कपड़े की हेल्प से इसको पकड़ सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे ये ब्रेक भी हो सकता है तो इसको ध्यान से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा. A circular blackish ring is formed on the glass plate. Slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. So आपको इसका ये जो पार्ट है यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इसको रखते हैं 10 सेकेंड तक आपको यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखता है. ये ब्लैक क्यों हो जाता है? ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पे आके स्टिक कर जाते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी a circular blackish ring is formed on the glass plate. Slide. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of the flame for about 30 seconds. अब क्या करना है, एक कॉपर वायर लेना है और इस कॉपर वायर को नॉन लुमिनस जोन में 30 सेकेंड तक रखना है. फिगर 6.22 आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये वाला फिगर 6.22. Notice that the portion of copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicates that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the shortest part. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यही है नॉन लुमिनस पार्ट और इसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है. तो ये हॉटेस्ट पार्ट होता है इस फ्लेम का. उसके बाद मिड सेशन के आसपास यहाँ पे मिड में जो आपको दिखाई दे रहा है इस फ्लेम के, ये है मॉडरेटली हॉट और एकदम लोअर इस पॉइंट पे
यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है लीस्ट हॉट। तो अगर आउटर मोस्ट जोन की बात करें तो क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन ये है, और ये ब्लू होता है। यही क्वेश्चन था आपका कि जहाँ कंप्लीट कंबसन होता है और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जो फ्लेम होता है उसका कलर होता है ब्लू। यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन येलो कलर का है। तो जहाँ पे पार्शियल कंबसन हो रहा है ये है येलो कलर का, इसका टेम्परेचर मॉडरेट है। और लास्ट वन इज इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक। यहाँ पे ये इनर मोस्ट जोन है, ठीक है, ये ब्लैक है कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम्स, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। गोल्डस्मिथ blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver। तो जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक बाउल पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये क्यों यूज़ करते हैं आउटर मोस्ट, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो यहाँ पे ये हार्टेस्ट जो पोर्शन है उसी का यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये है फ्लेम के बारे में। फ्लेम के बारे में ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे गोल्डस्मिथ का यहाँ पे देख सकते हैं वो यूज़ करते हैं आउटर मोस्ट जोन का, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और क्योंकि गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है, इसलिए उसको हॉटेस्ट जो पार्ट है वहीं पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, kerosene, etc. So let me repeat the statement. Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. तो इन्हीं सब्सटेंसेस को फ्यूल बोलते हैं जिनसे हमें हीट और लाइट मिलती है बर्न करने पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रीडली अवेलेबल। सो एक गुड फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल, मतलब जो इजीली अवेलेबल हो सभी के लिए। इट इज़ चीप, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, ये ईजिली बर्न करे एयर में और मॉडरेट रेट के साथ, ऐसा नहीं कि इसमें एक्सप्लोजन या बहुत ही फास्ट कंबसन हो। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसके अंदर ये बहुत ही हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और बर्निंग के बाद इसके अंदर से कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं बच जाना चाहिए, लाइक कार्बन और सम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल लाइफ, देयर इज नो फ्यूल जिसको कि हम लोग एग्जैक्टली आइडियल कह पाएँ, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है।
ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को 100% सेटिस्फाई करता है, जो ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन किए गई हैं, जिन जो कि हैं जो रेडली अवेलेबल हो, चीप हो, बर्न्स इजी इन एयर हो विद मॉडरेट टेम्परेचर, और जो लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस कराए, और जो कोई भी वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन या अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ती हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हो। सो देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। We should look for a fuel which fulfill most of the requirement for the particular case। तो यहाँ पे हम ऐसे फ्यूल्स को ढूंढते हैं जो हमारी पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। तो यहाँ पे कॉस्ट की भी अगर बात करें तो सभी जो फ्यूल हैं उनकी कॉस्ट अलग अलग होती हैं, ठीक है। कुछ जो फ्यूल हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल एज शोन इन टेबल 6.3। तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल है उनके स्टेट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बेसिस आपको एक टेबल बनाना है। और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत सारे ऐसे फ्यूल के बारे में पता है कि कौन कौन से फ्यूल सॉलिड हैं, कौन कौन से लिक्विड हैं, कौन कौन से गैसियस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉलिड फ्यूल की, तो यहाँ पे आपको कोल दिख रहा है। क्या वुड भी सॉलिड होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगर वुड सॉलिड है तो नहीं है, तो फिर लिक्विड है तो लिक्विड में लिख सकते हैं, या फिर गैस में लिख सकते हैं। सिमिलरली कैरोसिन ऑयल की अगर हम बात करें, क्या कैरोसिन ऑयल सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो यहाँ लिखेंगे, लिक्विड है तो यहाँ लिखेंगे, और गैस है तो यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से एलपीजी की बात करते हैं, तो एलपीजी का स्टेट क्या है, अगर सॉलिड है तो यहाँ लिखेंगे, लिक्विड है तो यहाँ लिखेंगे, गैसियस है तो यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करना है। आप चाहे तो इस टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट मोर फ्यूल्स। Okay, so you can complete these tables. Now we are going to study the point 6.7, that is fuel efficiency. So suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Give your reason. You must take the help of your parent। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर सपोज 1 लीटर वाटर दिया गया है एक बाउल में, और आपको इसको बॉयल करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, यहाँ पे एक टाइप का ये फ्यूल है, कोल ये भी है, एंड एलपीजी है। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, आप इनमें से कौन सा फ्यूल प्रीफर करेंगे। गिव योर रीज़न, अपना रीज़न भी बताएंगे यहाँ पे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये सभी फ्यूल सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमें सभी फ्यूल का सेम अमाउंट लेना होगा और चेक करना होगा। जैसे 1 kg कोल, 1 kg काउ डंग एंड 1 kg LPG। So let's see, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। तो यहाँ पे calorific value मीन्स क्या होता है, अगर कोई हम लोग फ्यूल लें और उसका 1 kg लें और उसको उसका कंप्लीट कंबसन कराएं, तो उससे जो हीट निकलती है या फिर हीट एनर्जी की बात करें जो निकलती है, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके,
तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू को कौन सी यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो द यूनिट इज कॉल्ड किलो जूल पर केजी। यहाँ पे किलो जूल जो है वो यूनिट है हीट एनर्जी के लिए, क्योंकि पर केजी में चेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं किलो जूल पर केजी। ओके, इसको शॉर्ट में के जे पर केजी भी लिख सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्यूल्स के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है एक्सपेरिमेंटली, और हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है और कौन से ऐसे हैं जिनकी कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंट डंग केक, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6000 to 8000 है। मतलब कि अगर आप 1 kg काउ डंग बर्न करते हैं तो आपको 6000 से 8000 किलो जूल हीट एनर्जी मिलती है। सिमिलरली अगर आप वुड को 1 kg वुड जलाते हैं, वैसे तो वुड की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट फिर भी एक एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 1 kg वुड से जो मिलता है वो 17,000 से लेके 22,000 तक हीट एनर्जी मिलती है। अगर हम कोल की बात करें तो कोल से हमें जो मिलती है वो है 25,000 से लेके 33,000 तक। पेट्रोल की अगर बात करें तो आपको 45,000, देख रहे हैं ये कितना हाई वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम केरोसिन की बात करें तो ये भी लगभग 45,000 किलो जूल 1 kg बर्न करने पर ये सारी रीडिंग हमको मिल रही है। यहाँ पे डीजल की अगर हम बात करें देखते हैं 45,000, ये सभी की वैल्यू लगभग सेम है। मीथेन यहाँ पे देख रहे हैं इनसे बेहतर इसका रिजल्ट है और ये है 50,000 किलो जूल। इट मीन्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इन सभी से हाई है। देन आप यहाँ पे सीएनजी देख सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी वैल्यू भी 50,000 है। तो इसका मतलब ये दोनों लगभग सेम वैल्यूज पे हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 है। इट मीन्स यहाँ पे देखिए इन दोनों में अगर सभी की बात करें तो एलपीजी हाई है। बायोगैस की अगर हम बात करें तो 35,000 से 40,000 तक है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये पेट्रोल, केरोसिन और डीजल से भी कम है, बट क्योंकि ये गैस है इसलिए इनको गैस के साथ रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 35,000 से 40,000 के आसपास है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 है, जो कि दिख रहा है आपको बहुत हाई है ये। इसकी वैल्यू अगर हम कंपेयर करें अदर जो हमारे फ्यूल्स हैं तो उसके कंपैरिजन में बहुत हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये 1 kg मटेरियल को बर्न करने पर या उनका कंप्लीट कंबसन कराने पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैलोरीफिक वैल्यू का। अगर इस टेबल में देखें तो सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन गैस की है, उसके बाद एलपीजी, फिर सीएनजी, मीथेन, उसके बाद पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इनकी लगभग सेम है और साथ ही बायोगैस है, और सबसे कम यहाँ पे काऊ डंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किलो जूल में वैल्यू है, रिमेंबर जूल में नहीं है। दीज वैल्यूज आर गिवन इन किलो जूल, ओके। और ये कैसे पता चलता है, ये 1 kg सब्सटेंस का कंप्लीट कंबसन करने से जो हीट एनर्जी मिलती है उसकी वैल्यू दिया गया है, यो ओके, यहाँ पे दिया गया है, ओके।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया है कैलोरीफिक वैल्यू, और आप याद रखेंगे कौन से बहुत ही अच्छे हमारे फ्यूल हैं on the basis of calorific value. Okay, so students, try to revise these topics daily wise, and it will help you uh, to understand the concept more deeply. Thank you for watching this session. Okay.